ہمارے سینئر صاحبان ان سے بھی سنتے ہیں. بات یہ ہے, انہوں نے ایک بڑی مزیدار بات کی اور میں اس بات کو بالکل ایک طریقے سے متفق ہوں ان کی اس بات سے کہ پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ حق کی باتیں قربانیاں بھی دی ہیں اور گلے بھی لگایا ہے, گلے بھی لگایا ہے. نہیں بالکل, لیکن ایک بات جو تاریخ کا حصہ ہے اس میں ان کو تھوڑا سا یاد کرنا چاہیے. یہ بات کر رہے ہیں کہ سوئس کیسز کی, مجھے یہ بتائیں, یہ ایک کامن سینس کی بات ہے. کامن سینس کو کوئی بھی بندہ چینج نہیں کر سکتا. ہماری کورٹس خود کہتی ہیں, ہمارا آئین جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو استثناء حاصل ہے. آئین سے بڑھ کر پاکستان میں کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا پورا ملک اس آئین کے دائرے میں چلتا ہے اور وہ پارلیمنٹ نے استثناء دیا ہوا ہے پریزیڈنٹ کو اور گورنر کو. اگر کسی کو اعتراض ہے تو پارلیمنٹ میں ان کے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی پارٹی کی نمائندگی ہے, یہ کیوں نہیں وہاں سے منظور کروا لیتے, قرارداد پیش کریں, منظور کروائیں. وہی بات ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھٹو صاحب کو بھی ٹائم دینا چاہیے. آئین کی تشریح کرنا سپریم کورٹ, قانون کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کا فرض ہے, نہیں کہ پیپل پارٹی کے اکابرین کا فرض ہے. سپریم کورٹ نے ایک مرتبہ نہیں, میرے خیال میں 20 مرتبہ کہا ہے کہ سوئس کی حکومت کا خط کو نہیں لکھتے ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ کا اگر بات کریں گے تو تاریخ میں جائیں گے تو سپریم کورٹ کا وہ بھی واقعہ آئے گا کہ جس پہ جو ہے آپ کی قیادت نے جا کے جو ہے حملہ کیا تھا, وہ بھی تو ایک تاریخ کا حصہ ہے. بھٹو صاحب آپ کی طرف آؤں گا, کس طرح یہ سیاست اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے, رخ جو ہے سیاست کا کس طرح جا رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بھائی میں نے ذرا میرا خیال ہے کہ مجھے تھوڑی سی بات کر لینے دیں, ورنہ آپ دونوں کا ہی ہو جائے گا شو. تو تھوڑا صبر بھی ضروری ہے. جی جی, دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے تو پہلے بھی بتایا کہ اس وقت کیونکہ تاج بنگش صاحب کافی دیر سے بیٹھے ہیں, ان سے بھی مجھے سوال کرنا ہے. جی اب فرمائیے. میں تو صرف اتنی بات یہ کہوں گا کہ اس وقت یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دراصل وہ جو امریکہ کے ساتھ ہمارا معاملہ چل رہا تھا کہ یہاں ڈرون حملے پھر دوبارہ شروع ہو گئے ہیں, ان کی سپلائی کی بحالی کے لیے راستے نکال لیے گئے ہیں. اسی طرح سے جو ہے یہاں ان کے ساتھ جو پہلے قومی اسمبلی نے قرارداد پاس کی, اس کے بعد سب سے پہلے قومی اسمبلی نے 2008 میں قرارداد پاس کی کہ یہاں امریکہ کے کہنے پہ جنگ نہ کی جائے, ڈائلاگ کیا جائے. پھر سوات آپریشن پہ ایک APC ہوئی کہ جناب یہ دہشت گردی کے خلاف مذاکرات کیے جائیں, امریکہ کے کہنے پہ دہشت گردی کے نام پہ یہ ایکشن نہ لیا جائے, فوجی آرمی ایکشن نہ لیا جائے. اس کو بھی انہوں نے خلاف ورزی کی. پھر اس کے بعد جو ہے ایبٹ آباد واقعے کے بعد پھر پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی, پھر اس کی خلاف ورزی ہوئی. پھر ابھی دوبارہ جو ہے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, اس میں پھر وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی, پھر اس کی خلاف ورزی ہوئی. تو یہ تو سارا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اور اندرون خانہ ڈیل کرنے کے لیے سارا کام. میمو گیٹ بھی یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں وہ امریکہ نے اٹھایا تھا اور امریکہ نے اسے کول ڈاؤن کیا. وہ بھی امریکہ نے اٹھایا. میں پوچھتا ہوں کہ آخر اگر یہ میمو اسکینڈل یہ نہیں تھا تو امریکہ نے کیوں مداخلت کی؟ اس نے بیانات دی ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارا یہ انٹرنل مسئلہ ہے, اور پھر ہمارے جو اصل مسائل ہیں اس کو ہم ایڈریس نہیں کر رہے ہیں. جی, اور میرے خیال میں یہ سب کچھ جو ہے صرف اس لیے ہو رہا ہے تاکہ جو اصل حقائق ہیں اسے قوم کے جماعت اسلامی اور آپ سینئر رہنما, اس مسئلے کو یونس حبیب کے ایشو کو کس نے اٹھایا ہے, کیوں اٹھایا ہے؟ کیا یہ وقت کا تقاضا ہے کہ اس وقت اگر یونس حبیب آ کے اور تمام چینلز پہ بیٹھ کے بات کرتا ہے اور اس کا ہدف جو ہے وہ خاص طور پہ میاں صاحبان ہیں؟ دیکھیں نا, میں پھر وہی بات کہتا ہوں کہ میں تو اس کنٹراورسی میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ یہ عدالت کے اندر ایک مقدمہ موجود ہے. میں زیادہ بات کروں گا تو میرے لیے بھی مسائل ہوں گے, لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ ایک آدمی جو خود اقراری مجرم ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے پیسے دیے اور فلاں فلاں کے کہنے پہ دیے, اور تو سوال یہ ہے کہ اس سے تو فوری طور پہ گرفتار ہونا چاہیے. تاج بنگش صاحب آپ کی طرف آؤں گا. میں نے جس طرح ابتدا میں کہا تھا, بھٹو صاحب, اسد اللہ بھٹو صاحب, تاج بنگش صاحب کا ان جگہوں سے وابستہ ہے جس جگہوں سے محرومیت بالکل نظر آتی ہے کہ وہاں کے لوگ آج پینے کے پانی نہیں ہے, راستے نہیں ہیں. تاج بنگش صاحب, اس وقت ملک میں جو یہ میمو گیٹ اسکینڈل اور خاص طور پر اگر یونس حبیب کا ایشو, آپ کا جو علاقہ ہے وہاں کے لوگ ان ایشوز سے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو ملک کے ہونے چاہیے, ہمارے حکمران ان جگہوں کے لیے کچھ کام بھی کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو علاقہ ہے اس میں لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ ملک کی جو سیاستدان ہے وہ سیاستدان جو کر رہے ہیں اور جو ہو رہا ہے, کیا وہ یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ان کے ذہن میں ان کا بھی علاقہ آ جائے جس علاقے میں یتیموں کے, بیواؤں کے, مزدور افراد کے, ٹوٹے پھوٹے لوگوں کے وہاں
न कोई सेहत का, न कोई स्कूल का, न कोई अस्पताल का, यानी कि वहाँ का हालात मैं बयान नहीं कर सकता। वो हालात जो 5-6 साल से वहाँ पर पाकिस्तान का फौज मौजूद है, बाहर दुनिया मुकाबले में आ रही है, ये स्कैंडल देखकर क्या वो इलाके के ये लोग समझ सकते हैं कि ये सियासतदान है, इनके तवज्जो इस मुल्क की तरफ भी है, इन लोगों की तरफ भी है, जी। लिहाजा ये बड़ी बदकिस्मती है। और ये जो यूनुस हबीब वाला मसला है जो कि इन्होंने बयान दिया, वो तो सामने जिन्हें वजाहत के साथ उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने इनकार किया वो भी लोग मौजूद है और ये मीडिया पे आया, और जिन लोगों ने लिया है वो लोग, वो भी इनके खिलाफ जो है इस मुल्क को बचाने के लिए, इस कौम को बचाने के लिए ये जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है या कमीशन बनाया जाए या सुप्रीम कोर्ट जो है इनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो जो ये सब कुछ सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जी असदुल्लाह भुट्टो साहब, वही सवाल है कि आप और हम यही देखते हैं, जो मैंने मगर साहब से सवाल किया कि लोग इन मेमो गेट स्कैंडल जितने भी हैं, यकीनन नहीं वो चाहते हैं कि एहतसाब तो होना चाहिए। अगर किसी ने ऐसे उन्होंने जो कार्रवाई में कोई मुलविस रहे हैं हमारे हुक्मरान, उनका एहतसाब तो होना चाहिए, पर उनके लिए आम जो इशू है, उनके लिए रोटी कपड़ा मकान है, उसके लिए एनर्जी क्राइसिस नहीं होना चाहिए। सीएनजी आपके आज शहर में नहीं है। आज जहां पे हम बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ सिंध और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त लाइट नहीं होगी, बिजली नहीं होगी। भाई मैं यही तो कह रहा हूँ कि असल में इस वक्त हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के तारीख़ में सबसे ज़्यादा जमातें बरसर इक़्तिदार हैं, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बरसर इक़्तिदार रहे हों, और अवाम जिस बुरी पोजीशन में और बुरे हालात के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो अमेरिका ने पहले कहा था कि भाई अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें स्टोन एज में पहुँच जाएंगे, तो स्टोन एज में तो हम पहुँच गए, जहाँ न बिजली है, न पानी है, न कुछ है, और मकरूज है, सेहत के लिए कुछ नहीं है। तो आपको नजर नहीं आ रहा कि वज़ीर आला पंजाब लैपटॉप बांटते हुए नजर आ रहे हैं? भाई देखिए ना, मुस्लिम लीग नून, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, लैपटॉप तो बांटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अवाम का असल इशू जो है वो लैपटॉप के साथ साथ असल तो महंगाई है, असल तो बदअमनी है। यहाँ तो न मोबाइल महफूज है, न मोटरसाइकिल महफूज है, न आदमी महफूज है। अंदरूनी सिंध जो है औरतों के साथ जो कुछ हो रहा है, इसी तरह से हमारे यहाँ जो है बदअमनी का हाल ये है कि किसी का जानवर महफूज नहीं है, अगवा हो रहे हैं, कराची में लोग अगवा हो रहे हैं। तो मैंने इसलिए अर्ज किया कि इस सूरत हाल में हुकूमत की असल तवज्जो तो इधर होनी चाहिए। अगर आज सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो चलने दें, लेकिन हुकूमत को, बाकी हुकूमत को तो काम करना चाहिए, लेकिन हुकूमत जो है उसके आड़ में खड़ी हुई है, कोई परेशान हाल नहीं है। और मैं एक बात यहाँ पर ये भी ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखें, बात सिर्फ इतनी है कि एक तरफ ये सारे स्कैंडल और सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई मुज़ाकरात मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए नहीं हो रहा है, कोई भी नहीं हो रहा, किसी को नहीं। अच्छा, सिर्फ इस पे हो रहा है कि हमारे इतने सेनेट की सीटें हो जाएं, इतनी वज़रातें हो जाएं, फला हो जाए। सेनेट के इलेक्शन से पहले ये यूनुस हबीब का इशू या ऐसा इशू क्यों सामने नजर नहीं आया? मैं वही कह रहा हूँ ना, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ही नहीं है, यानी सब लोग जो है कोशिश करेंगे। शर्जील मेमन शायद हमसे लाइन पर नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि अगर उसको दोबारा शर्जील मेमन साहब को लाइन पे लें तो उनसे यही भी सवाल करेंगे कि सिंध असेंबली में जो है, इस वक्त वो दुबई में है शर्जील मेमन साहब, सिंध असेंबली के अंदर कोई भी अपोजिशन लीडर नहीं है, और अपोजिशन लीडर के लिए साबिक वजीर आला अरबाब रहीम साहब ने दरख्वास्त भी दी थी, पर वो नहीं आ सके, उसकी कोई वजूहत थे, वो भी हम जानेंगे उनसे। पर वही बात आ रही है अपना ज़ैन अंसारी साहब कि इस वक्त मुल्क और कौम इस वक्त आपको देख रही है। वही भुट्टो साहब कह रहे हैं कि नॉन इश्यूज को तमाम सियासतदान बैठ के आप लोग डिस्कस करते हैं, और उसके साथ साथ जैसे फाटा और वाना वजीरिस्तान की सूरत हाल जो आपके सामने है, उसकी भी बात हमारे सामने के अमली काम इस मुल्क में नहीं होता। सवाल यह है कि जैसे भुट्टो साहब ने कहा कि एक ही सी बुलाई गई गवर्नमेंट की तरफ से, हम उसमें गए, हमने सारे इश्यूज पर डिस्कस किया और हमने करारदाद बनाई, लेकिन वो करारदाद पर अमल नहीं हुआ। करारदाद को कौमी असम्बली में लाया गया, वहाँ मसला तय हुआ कि जी ये सही है, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास से इकट्ठे हुए, उसमें ये तय किया गया कि ये ड्रोन हमले बंद कर दिए जाएं, जो गलत है, नहीं होने चाहिए। अमेरिका को मुदाखलत की हमने सब बड़ी मुखालफत की, उस पर अमल नहीं हुआ। ये तो वही तसलसल है परवेज मुशर्रफ का। भाई परवेज मुशर्रफ ने जिस तरह से अमेरिकन को ये रास्ते दिए थे, जिस तरह से ड्रोन हमले जुबानी या किस तरह से एग्रीमेंट आज तक वो ओपन नहीं कर रहे हैं। किसी मुल्क के अंदर किसी आकर के एक ड्रोन हमला हो जाता है, 15-16 आदमी मर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है,
कोई उस पर आवाज उठाने वाला नहीं है। ये कौन सा तरीका है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट अभी जैसे आपने कहा कि लैपटॉप की बात की, लैपटॉप आप लोगों को क्यों धड़कते हैं, दिल में क्यों धड़कता है? सवाल है कि वो भी नौजवान एक बंदा है, मेरिट पे आ रहा है, होशियार है, उसकी जरूरत है, लैपटॉप की जरूरत है। अगर पंजाब गवर्नमेंट ने दिए तो ये तो करप्शन तो नहीं किए, लोग जो यहाँ करप्ट लगे हैं, लोग तो यहाँ करप्ट बना रहे हैं, लोगों को हजार हजार रुपया दे करके बेइज्जत कर रहे हैं। रहने लगी हुई हिंदुस्तान में तो देखो बेनजीर स्कीम कर रहे हैं, लोगों को भिखारी बना दिया है। लेकिन ब्रेक का एक टाइम है, ब्रेक के बाद जब आएंगे, जी ब्रेक का टाइम है, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो कोशिश करेंगे कि शर्जील मेमन भी हमारे साथ हो और उनसे भी हम बात करें। और जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है कि मुल्क में लैपटॉप जो है तमाम लोगों को नजर आते हैं कि आखिर क्यों खादमे आला पंजाब लोगों को देने चाहिए, पर उसके साथ साथ अमली काम होने चाहिए मुल्क के अंदर और बिलखुसूस पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, उस पर भी आके सवाल करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, खुशामदीद कहता हूँ आपको। जिस तरह आज मुल्क में जो है बात चल पड़ी है एहतसाब की और उसके साथ साथ नए नए इंतशाफात हो रहे हैं, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि यूनुस हबीब साहब ने जो इंतशाफात किए हैं और बिलखुसूस जो उन्होंने बातें की हैं खादमा आला पंजाब और जो है साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के लिए कि उन्होंने बराह रास्त पैसे लिए थे और उन्होंने जो है पैसे लेने के बाद आज वज़ीर आला पंजाब ने बिल्कुल उसको बातों को कंडम कर दिया। उन्होंने कहा कि हम यूनुस हबीब को कोर्ट में ले जाएंगे। पर यहाँ पर जैन अंसारी से वही सवाल करेंगे, जैन अंसारी साहब कि यूनुस हबीब साहब ने जिस तरह कहा कि मैंने बजरिया टीटी के पैसे भेजे थे और मेरे पास वो शवायद मौजूद हैं। मैं आपका कहूँगा टीटी किसको क्या है, उसने शहबाज शरीफ के नाम पे टीटी आई है और नवाज शरीफ को जाके घर पैसे दिए। मैं आपका करूँ ना, उसने ये कहा कि मैंने टीटी अपने बैंक अफसर को भेजी है। टीटी में उसने कहा, टीटियां तो होती है ना एक बैंक से दूसरे बैंक अफसर को दिए और बैंक अफसर ने वो पैसे शहबाज शरीफ को दिए। और दूसरी तरफ कहता है कि मैं नवाज शरीफ को पैसे दिए। हमने पूछा, जब साहब ने पूछा कहाँ दिए, उसके घर पर, और फिर कह रहा है कि हम बड़ हुजूम में दिए। वो एक बात पर खड़ा ही नहीं हो रहा है, हुजूम था, हुजूम में पैसे दिए। भाई इस तरह से थोड़ी बात होती है, जो एक आदमी आपसे इतने पैसे दे रहा है और वो हुजूम में पैसे लेगा। ये सारा महाबदमाश आदमी है। मैं तो इसको कह रहा हूँ कि सिर्फ ये लैंड ग्रेबरी का केस इस पर चलाया जाए। ये फार्म ठट्टा जिले में जिसका फार्म है, लोग सैकड़ों लोग अभी तक चीख रहे हैं 30 साल से कि इनकी जमीन पर कब्जा किए बैठा हुआ, उनको पैसे नहीं दे रहा है। जो आदमी गरीबों के पैसे नहीं दे रहा है वो लोग जाकर नवाज शरीफ को पैसे देगा। नवाज शरीफ इसके 30 लाख या लोगों के पैसे खाए हुए, लोगों के पैसे खाए हुए, और वो नवाज शरीफ को 30-35 लाख रुपए देगा। और उसके बाद आपसे मैं अर्ज कर रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि जी मुत्तहिदा वालों ने इनकार कर दिया है, क्या हमने माना है? क्या हम भी इनकार कर रहे हैं? हम भी कह रहे हैं कि उसने कहा कि मैंने भेजे थे, पैसे दिए थे, पर एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने लेने से इनकार कर दिया। यूनुस हबीब ने कहा, यूनुस हबीब और नवाज शरीफ कह रहा है कि मैंने लिए। यार इस तरह से नवाज शरीफ को कह रहा है मैंने खुद दिए। नवाज शरीफ तो कह रहा है कि नहीं लिए, और टीटी की जो बात कर रहा है वो खुद कह रहा है कि टीटी मैंने एक बैंक अफसर के नाम पर, जमशेद बता रहे क्या बता रहा है, उसके नाम पे भेजी और उसने दी। यार इस तरह से मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर मैं अगर कहूँ तो 50 लाख रुपए में मुझसे इसलिए अपना फार्म बेचा है और स्टाम्प भी मेरे पास पड़ा है, मान जाएंगे कोई? तो स्टाम्प होगा तो उसे माना चाहिए, इसमें गवाही होगी, शवाहिद होंगे। इसका तरीका क्या होता है, वो फार्म जो स्टाम्प फार्म है वो रजिस्टर होता है, रजिस्ट्री के बाद फिर वो रेवेन्यू अफसर के डीसी के पास जाता है, डीसी फिर उस पर ऑर्डर करता है, कहा जी ये सही है, ये रजिस्ट्रेशन सेल किया है, सेल एग्रीमेंट होगी। इस तरह से होता है ये। तो साहब अगर वो एक सवाल है कि इस वक्त वही बात आ रही है कि यूनुस हबीब कह रहे हैं कि मियां साहब के घर जाके मैंने पैसे दिए। अगर घर आके मैं आपको पैसे देता हूं तो लाजमी है, तो मैं तो इसको वसूख के साथ कह सकता हूं कि भुट्टो साहब को मैंने पैसे दिए। भाई देखें, बात सिर्फ इतनी है कि अब ये एक अदालत के अंदर केस मौजूद है, लेकिन उनके जो इल्ज़ामात हैं वो मौजूद हैं, उसका फैसला तो अब अदालत ही करेगी। मुझे तो इस पर ताज्जुब ये है कि आखिर इसको हम सियासत का निशाना क्यों बना रहे हैं। एक अदालती मसला है, उसको अदालत में फैसला होने दें। जैसे केस चलते हैं, मुकदमात चलते हैं, उसके बाद अदालत फैसला देती है, अदालत को फैसला देने दें। हम उसकी सियासत क्यों कर रहे हैं? ये दूसरी बात यह है कि मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ मुल्क के अंदर अगर ये उस वाक़या जिस तरह से कहा जा रहा है, तो आखिर ये उसने जब ये कहा कि मैंने 93 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी पैसे दिए थे, उस पे ऊपर तो कोई नहीं बोल रहा है। इसी तरह से एमकेएम के लिए कह रहा है कि उसके सरबराह ने तो नहीं लिए थे, लेकिन यूसुफ एडवोकेट ने लिए थे। पर ये कुछ मौलवी हजरात का उन्होंने दबे लफ्जों में कहा है कि मैंने बहुत सी ऐसी इस्लामी जमातें थी कि मौलवी हजरातों को मैंने दिए थे पैसे। मौलवी हजरात के लिए पर वो 5 लाख 10 लाख बड़ी रकम। मैं कह रहा हूँ 2 लाख दिए, 10 लाख लिए। सवाल ये उसका भी नाम उसको लेना चाहिए। वो मौलवी पेश इमाम किसी मस्जिद का था, कौन था? दूसरी बात ये कि ये सारी चीजें मेरे नुक्ते नजर से आने वाले इलेक्शन में सियासत मुखालिफ सियासतदानों को डैमेज करने के लिए की जा रही हैं,
ताकि जो है पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी तो है नहीं, इसी तरह से वो